Delhi has recorded 24,638 COVID cases in the past 24 hours. 249 people in the national capital have lost their lives. The positivity rate is at an alarming 31.28%. Delhi's healthcare infrastructure and system is stretched to the limit and cracks are already showing. Hospitals are running out of oxygen and healthcare workers are exhausted. Amidst all of this, 15,000 farmers associated with the Bharatiya Kisan Union's Ugraha faction are planning a massive show of strength. They call it Operation Shakti at Delhi's Singhu border. The question is, can Delhi afford it? Can India afford this? Thousands of farmers plan a massive show of strength on Delhi's borders on Friday, the 23rd of April. As part of Operation Shakti, involving farmers from Punjab, Bharatiya Kisan Union Ugrahan faction plans to hold a tractor rally at the Haryana-Delhi border. The farmers then plan to stay on at the Singhu border. लगभग 2000 ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹਦੇ ਚ 15000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ किसान मजदूर औरतां नौजवान बहुत वड्डी गिणती दे विच ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਦੂਗਾ. The farmers have also asked migrant labourers returning to their villages to camp with them at the Delhi borders, whether at Ghazipur or at Singhu. The aim is not just increase numbers, but also to show the Narendra Modi government that farmers and industrial labour are on the same page. ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੋਨਾ ਇਥੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਆਵੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਣੇ ਆ. ਅਸੀਂ 15000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ. ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜੇਕਰ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾ ਲੇ ਮਿਲਟਰੀ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾ ਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੁਲਾ ਲਵੇ. The harvest season is over and farmers insist the numbers will stun the government into repealing the farm laws. The farmer unions had a meeting with the Haryana government and decided to leave one carriageway on the national highway open for movement of emergency vehicles. हम किसान अपने घर में हैं, किसान अपने गांव में हैं, किसान को जाने के लिए कहाँ कहेंगे? मतलब कोरोना यहाँ से फैल रहा है, कोई ये कोरोना का घर है यहाँ पे? कोरोना इनसे फैल रहा, ये तो गांव में बस रहे हैं ना किसान, जहाँ पिछले 5 महीने से हम रह रहे हैं, ये तो हमारे गांव है. अब यहाँ से क्यों जाएंगे हम? The farmers have also assured the government that they will follow COVID appropriate behaviour. However, these images of an iftar party hosted by farmer union leader Rakesh Tikait exposes the hollow claims of social distancing and socially appropriate behaviour. Farmer union leaders also insist they have not stopped emergency vehicles and oxygen tankers, and the delay is only due to barricades erected by the government itself. However, the congregation of farmers on Delhi's borders amidst a spike in COVID cases is a cause for serious concern. Bureau Report, India Today. Prime Minister Narendra Modi has cancelled 4 public rallies in Bengal tomorrow. The Election Commission has issued fresh guidelines restricting road shows, cycle rallies, but farmer unions insist they will continue to protest. There is a time to protest, but is this the time to protest, or is this the time to put health first and of course the health of fellow Indians? Joining me on India First are Dharmendra Malik of the Bharatiya Kisan Union, Dr. Harsh Mahajan will give us a medical perspective on the situation, R.P. Singh represents the Bharatiya Janata Party, and Dr. Vikram Singh is former Director General of the Uttar Pradesh Police. But Dharmendra Malik, I want to come to you first, sir. कोरोना से हालात धर्मेंद्र मलिक जी दिन पर दिन बद से बदतर हो रहे हैं. ऐसे में क्या किसान यूनियन को इस समय शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए? क्या इससे अपना स्वास्थ्य और औरों के स्वास्थ्य से, डॉक्टरों के स्वास्थ्य से खेल नहीं खेल रहे हैं किसान? बंगाल चुनाव शायद खत्म हो गया या अभी चल रहा है. बंगाल में रैलियां हो रही थी, प्रधानमंत्री मास्क नहीं लगा रहे थे, गृह मंत्री देश के रोड शो कर रहे थे,
और किसी टीवी चैनल को याद नहीं आई कि ये देश में हो क्या रहा है। हर टीवी चैनल को याद आई, हर टीवी चैनल ने इस मुद्दे को उठाया और आज ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अपनी रैली कल नहीं कर रहे हैं। यही बात ममता बनर्जी ने भी कही। अब वर्चुअल रैली होगी, अब वर्चुअल रैली होगी। राहुल गांधी 8 दिन पहले कह चुके आज देश मर रहा है, देश का शमशान गृह बना दिया निकम्मी सरकारों ने, देश में ऑक्सीजन पैरासीटामोल नहीं मिल रही और आज कह रहे कि बंगाल का दौरा रद्द कर दिया। और किसानों की यात्रा से वो पैरासीटामोल और ऑक्सीजन मिलने लगेगी, किसानों की यात्रा से बनने लगेगी ऑक्सीजन अपने आप। जो किसान सिंगू बॉर्डर पर आकर 15,000 किसान यूनियन वाले, जो यूनियन बाजी होगी उससे होने लगेगा ये सब। अरे कोई केस है आपके पास कि बॉर्डर से कोरोना फैल रहा है? नहीं, अगर वो गलत है तो ये कैसे सही है? वो गलत है तो ये कैसे सही है? क्या दो गलत चीजें सही बनाते हैं कि वो अपनी नाक काट रहे तो आप भी नक्काटा संप्रदाय शुरू कर देंगे? आप गारंटी दे सकते हैं कि अगर आंदोलन खत्म हो जाए तो वहां कोरोना नहीं होगा, देश से कोरोना चला जाएगा? नहीं तो आप और कोरोना बढ़ाइए। चलिए, ये आपका मत है, ये आपकी मानसिकता है और ये आपकी सोच है। आरपी सिंह, when political parties can hold election rallies, then why can't farmers hold their protest? That's the point that Dharmendra Malik raises. After all, both are trying to make their point, one for votes and one for किसान यूनियन की बात कर रहे हैं हम, किसान यूनियन की, ये जो यूनियन बाजी हो रही है। बट आरपी सिंह रिस्पॉन्ड, किसान बोल रहे हैं, किसान यूनियन के लोग बोल रहे हैं कि अगर बंगाल में रैली हो सकती है तो उनका शो ऑफ स्ट्रेंथ क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, धर्मेंद्र मलिक की बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर बंगाल में रैली हो सकती है, केरल में रैली हो सकती है। हाँ, आपके चेते राहुल गांधी वो भी रैली करते हैं। अभी आपने कहा राहुल गांधी के बड़ा प्यार से आपने पुचकार कर उनका नाम लिया, वो भी रैली करें तो वो उससे क्या कोरोना नहीं होगा। समझिए स्थिति क्या है, आज से 15 दिन पहले तक, आज से हफ्ता भर पहले तक जो स्थिति आज भयावह है वैसी नहीं थी, जानकारी भी नहीं थी लोगों को, ऐसे समझ में नहीं आ रहा था। आज स्थिति भयावह है, आज स्थिति खतरनाक है, परंतु आपने एक डुगडुगी बजाई। अभी मैं योगेंद्र यादव को चैनल सुन रहा था, एक झूठा प्रचार, एक प्रपंच रख दिया। नहीं, सरकार वहां पर कोई एक्शन लेने जा रही है, आओ इकट्ठे हो जाओ, वापस इकट्ठे हो जाओ। अरे भैया, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, ये समय नहीं है इकट्ठे होने का, ये समय है अलग अलग रहने का, दूरी बनाए रखने का, मास्क लगाने का। कृपा कर मैं आपसे हाथ जोड़कर, आप आंदोलन जरूर करिएगा, वापस आ जाएगा, आपकी बड़ी शक्ति है सर। आपने बड़ी बड़ी महापंचायतें कर ली, राहुल गांधी के ट्रैक्टर पर बैठ के हमने मना नहीं किया आपको, कोई रोका? आपने यूपी में महापंचायत की नहीं रोका, आपने हरियाणा में कहीं नहीं रोका, राजस्थान में कहीं नहीं रोका ना, मना नहीं किया आपको। इसलिए नहीं मना किया जब तक इस प्रकार की विकट स्थिति नहीं थी। आज स्थिति विकट है, इसलिए हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। और एक तो छोटी सी विनती कर रहा हूं आपसे, कृपा करके सिंगू बॉर्डर से एक क्लीन कॉरिडोर दीजिए ना। वो पानीपत से 140 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन आती है आपके चेते मुख्यमंत्री को, जिसको आपने अभी जाकर पंजाब में चुनाव लड़ाना है, उस राज्य के लिए 140 मीट्रिक टन पानीपत से आती है ऑक्सीजन। वो ऊपर घूमकर आती है, पूरा ब्रिज काट कर आती है, 4 घंटे का फालतू रास्ता लगता है और दिल्ली में चलाई होती है। इतनी मेहरबानी अपने चेते मुख्यमंत्री पे ही कर दो और छोड़ो, बाकी छोड़ो। इसके हाथ जोड़कर विनती, इसमें राजनीति मत समझो, इसमें राजनीति नहीं है और सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। Let me bring in Dr. Harsh Mahajan. Dr. Mahajan, from a doctor's perspective, from a medical perspective, if 15,000 people congregate at Delhi's borders, and of course there are already some people there, is there a fear, is there an apprehension given the current situation that this place could emerge as a corona hotspot? Well, that's quite obvious, Gaurav. It doesn't require me to tell that. It's obvious wherever people will congregate, and for long duration of time, the chance of corona emerging and spreading is very high. Also, this is a mobile population. They may be there for 3 days, then they are going to go back to their homes and then come back again. That is how it's been happening in the last few months. So it can definitely spread. And as to the argument that there's no corona there, actually we don't know. About corona, we know that 80% nearly of patients are asymptomatic or have only mild symptoms, and it's only 20% who get serious symptoms. And even these asymptomatic ones do spread disease to others, to their family, parents, others in the village, yes, and they may get a serious disease. So that is one point. The second point is, with this congregation that's happening,
And with the huge shortage of oxygen that we have in Delhi at the present point of time, yes, actually you've seen pictures today of doctors, CEOs crying on television because there was no oxygen which was in the vicinity or which was going to come. You've seen pictures of doctors folding their hands, not for themselves, but for their patients. Absolutely. I know that a very big hospital in Gurgaon today in the evening had oxygen only for 1 hour, and there were more than 150 patients admitted there. Yes. Some so in of fact, these- that's the question I'm coming to, some- Dr. Mahajan. Gaurav, Before I let me bring in Mr. complete. Vikram Singh, Let me I complete. okay. Let me complete. Some of these patients may even be farmers. They may come from farming background because this is Haryana after all. And so, I mean, this is just not done. You have your politics, you have your agitation, you have your, things, your demands. But this is not the time to hamper the effort. धर्मेंद्र मलिक जी, आप सुन रहे हैं, वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर कह रहे हैं कि हजारों लोगों की जिंदगी इस समय खतरे में है। हम लड़ रहे हैं अपने मरीजों के लिए, तो उसमें जितना आप सहयोग दें, फार्मर तो हमेशा सहयोग देते रहे हैं और फार्मर फैमिली के लोग ही सारे जंग लड़ते हैं आगे जाके फ्रंट पे, तो इसको अभी के लिए थोड़ा टाल दें। आपके साथ सारा देश है, पर देश को नाराज ना करें। अगर 50-100 लोग मर गए क्योंकि वहां पे एजिटेशन थी, ऑक्सीजन नहीं पहुंची, तो ये आपको ही क्षति देगा। नहीं, लेकिन डॉक्टर महाजन, मैं ये समझना चाहता हूं और मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं ताकि ज्यादा लोग इसको सुन समझ सके। डॉक्टर महाजन, दिल्ली और हरियाणा दोनों इस समय ऑक्सीजन के लिए एक तरह से जंग लड़ रहे हैं, एक दूसरे से जंग लड़ रहे हैं। तो क्या दिल्ली और हरियाणा या पंजाब को भी अगर इसमें जोड़ लें, क्या इन राज्यों का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, राजस्थान को भी जोड़ लीजिए, क्या इन राज्यों का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो एडिशनल बर्डन जो उस पर दबाव है उससे ज्यादा दबाव इस समय झेल सकता है? डॉक्टर महाजन, केवल डॉक्टर का पर्सपेक्टिव मैं जानना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं झेल सकता। आप अभी देख रहे हैं कि जो सीरियस मरीज हैं, जिनको हॉस्पिटल की जरूरत है, जिनको आईसीयू बेड की जरूरत है, उनको बेड नहीं मिल रहा। और अगर ये हम किसी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी या केसेस बढ़ जाएंगे जो कि आग की तरह से बढ़ रहे हैं, अगर ये बढ़ेंगे तो ऑलरेडी चरमराई हुई जो व्यवस्था है वो बिल्कुल संभाल नहीं पाएगी। और ये गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ने वाला, ये पॉलिटिशियन को फर्क नहीं पड़ने वाला, ये फर्क आम जनता को पड़ना है जो कि अभी बीमार है और एम्बुलेंस में लेके अपने माता पिता को आदमी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रहा है और जो डॉक्टर हैं वो हाथ जोड़ रहे हैं कि ऑक्सीजन आने दीजिए, आने दीजिए। आप मान नहीं सकते, जब मरीज की एक हार्ट बीट मिस होती है, डॉक्टर की 2 हार्ट बीट मिस होती हैं, और यहां जब पता हो कि शायद 3 घंटे की ऑक्सीजन है, 8 घंटे की ऑक्सीजन है, 2 घंटे की ऑक्सीजन है, उस स्थिति में तो बहुत ही दिक्कत है। चाहे ये गवर्नमेंट कर रही है, चाहे ये पुलिस के बैरिकेड लगे हैं, चाहे फार्मर कर रहे हैं, चाहे हम लोग कर रहे हैं, हमें सब मिलकर व्यवस्था का सुधार करना है। इस समय तो इंडिया फर्स्ट रखा है, कि हम ये जंग जीत सकें। सही बात है। एंड मिस्टर विक्रम सिंह, it's the doctors who suffer. It's the common man who suffers. First, there were political rallies, then there were religious congregations, then there were festivities and parties, and now agitating farmers' unions, they want to come and sit on Delhi's borders. Can the government do something at this stage, or in your appreciation, they'll do nothing because there are elections and there are vote banks. They don't want to upset anything, चाहे लोगों की जान जाए. Mr. Vikram Singh. Agreed, Gaurav ji, that it is a catch-22 situation, but the government doesn't work like that. What is in the interest of the nation and what is in the interest of those suffering in the hospitals, in the ICUs, those who are suffocating, have the highest priority. As you very rightly mentioned in your opening remarks, for everything there is a time. And as Dr. Harsh Mahajan lucidly explained, that in the face of this extreme health emergency, all agitations become irrelevant and secondary. The prime concern is the health of the nation and those who are suffering in the hospitals. And make no mistake about it, our farmers' families are also the sufferers there. It is not that the farmers' families are bereft of this human tragedy. अच्छा, अभी मैं अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं. You're absolutely right, sir. You're absolutely right. I want our viewers to see the image of an iftar party that was happening. धर्मेंद्र मलिक जी, राकेश टिकैत एक इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और वो तस्वीरें देखिए और आप खुद बताइए
किसी ने ना मास्क पहना है, ना किसी ने कोई सोशल डिस्टेंसिंग की है, ना कोई कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, और फिर भी जब बीमार पड़ेंगे तो बोलेंगे कि जी देश का हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा रहा है। यह कैसा फार्मर एजिटेशन है? ये पिक्चर आप उसी तरह की दिखाते हो जिस तरह से पिछले साल आप जो है कोरोना के लिए मरकज को दोषी ठहरा रहे थे, और उसमें कोई एक चैनल नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक हमाम में सभी नंगे थे। और जो रिपोर्ट आई और जो कोर्ट ने कहा, क्या किसी चैनल ने आज तक माफी मांगी? अभी ये बताइए, अभी ये बताइए, जब भीड़ इकट्ठा हो रही है, जब भीड़ इकट्ठा हो रही है तो उससे कोरोना फैलेगा कि नहीं फैलेगा? रोजा खोल रहे हैं, दूरी खाना खाते समय उतना तो डिस्टेंस होता ही है। चलिए, अगर आपकी यही मानसिकता है, और मैं आज सीधे तौर पर यह कह रहा हूं कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो यह देश पछताएगा। मैं डॉक्टर से पूछ लेता हूं, मैं डॉक्टर से पूछ लेता हूं, क्या है? अगर चिपक चिपक के बैठेंगे तो कोरोना होगा कि नहीं होगा? रोक रखा है किसान ने। अगर 15,000 किसान, मेरे साथ चलिए, 15,000 किसान एक जगह आएंगे तो कोरोना फैलेगा कि नहीं फैलेगा? और फिर बोलेंगे कि देश की हेल्थ केयर व्यवस्था चरमरा रही है। तमाम गलत खबरें चलाई गई। मैं वीडियो आपको भेज देता हूं। एक ऑक्सीजन का टैंकर आता है, किसान उसको निकलवाते हैं, और एक सांसद बयान देता है कि किसानों की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही। टैंकर का ड्राइवर कह रहा है कि किसान तो मदद कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस आप मुझे ये बताइए, आप 10 लाइनें, अरे धर्मेंद्र मलिक जी, आप 10 लाइनें रट कर आ जाइए और वो 10 रटी रटाई लाइनें बोल दीजिए। आपको ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जो डॉक्टर बोलते हैं कि अगर लोग इकट्ठा होंगे तो कोरोना फैलेगा, ये बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? या आपको इसका कोई ढेले का फर्क नहीं पड़ता? फैले तो फैले, आपकी राजनीति चलनी चाहिए। अरे हमारे 15,000 लोग अगर इकट्ठा होंगे तो कोरोना फैलेगा कि नहीं फैलेगा? कोरोना से फाइट करने वाले लोग हैं, सहायता करने वाले लोग हैं हम। कोरोना एक केस आप बताओ किसी बॉर्डर से आया हो? आप कोई रिपोर्ट रखोगे, कोई ग्राउंड रिपोर्ट होगी, उसी के आधार पे बोलोगे, या बस जो मन में आएगा बोलते जाओगे? तो जब आ जाएगा, जब लोग परेशान होने लगेंगे, उसी के बाद आपकी आंखें खुलेंगी। इसके लिए किसान जिम्मेदार हैं क्या? हाँ या ना में बताओ आप। आरपी सिंह जवाब दीजिए, आरपी सिंह जवाब दीजिए। सबको प्रयास करना चाहिए, हमको भी प्रयास करना लेकिन चाहिए। आप तो प्रयास कर नहीं रहे, जब हर जगह लॉकडाउन लग रहा है, हर जगह लॉकडाउन हो रहा है, हर जगह लॉकडाउन हो रहा है, लेकिन 15,000 किसान आ जाएंगे। हम दूरियां मेंटेन भी करते हैं, हम पागल भी नहीं है। अब वो तो अगले 15 दिन बाद पता चलेगा अगर एक्सप्लोजन होता है या नहीं, लेकिन चलिए वो भी देख लेंगे जब देश इतना भुगत रहा है, देखते हैं और कितना भुगतेगा। बट डॉक्टर हर्ष महाजन, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम यू। Are these agitating unions, if they are bringing 15,000 people, 2,000 गाड़ियों में भर भर के आ रहे हैं, और डॉक्टर्स बोल रहे जी सोशल डिस्टेंसिंग करो, घर में भी बैठो तो 4 लोग मास्क लगा के बैठो क्योंकि अगले 15 दिन बहुत क्रिटिकल है। ऐसे में are they a risk to themselves and are they a risk to others, and especially to healthcare workers? They are a risk, Gaurav. It doesn't require me to tell that. This is well known. This is well known to all of them. They are a risk to each other. When you eat together, actually the only thing that saves you is the mask worn properly. And when you're eating, your mask is down. And that is where it spreads. In fact, in our hospitals, in our offices, we say that 2 people should not sit together and eat because your mask is down. Eat one at a time or go out in the open, one person at a time. When you're sitting together, talking, eating, having tea, that's when the chance of getting the infection is maximum, number one. Number two, this new mutant, which is there, the UK mutant in Punjab and probably a mixture of mutants in Delhi. Okay. These are more infectious, and that's why we've had this sudden spurt. I mean, I keep saying this has not been like a plane taking off. It's like a jet taking off. It's a vertical trajectory. So, but if people want to get infected and infect others, and if the administration and powers that be are unable to do something, then we as citizens of the country, हिंदी में कहते हैं हम झेलेंगे, हम झेल रहे हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, आपको समझ आई कि नहीं आई? मर ही रहे हैं कि पिछले साल से अलग है ये कोरोना, ये म्यूटेंट अलग है, ये तेजी से फैल रहा है। पंजाब में जो मामले आ रहे हैं, हरियाणा में जो मामले आ रहे हैं, दिल्ली में जो मामले आ रहे हैं, क्यों इतना तेजी से एक्सप्लोजन हो रहा है? यही डॉक्टर साहब समझा रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री से पूछो कि बिना बिल के देश जो है कहां रुक गया। अगर देश की स्थिति इतनी खराब है और देश सबके लिए, देश हित सर्वोपरि है, तो क्या ये बिल रद्द नहीं कर सकती सरकार?
सरकार को बात नहीं करनी चाहिए किसान से कि देखिए कोरोना काल है, ये स्थिति है, आप नंबर ऑफ फार्मर्स कम कीजिए, या आप जो है कुछ दिन आंदोलन को जो है अभी इसको आप रोकिए और हम आपसे बात करते हैं, या हम इन बिल को फिलहाल रद्द कर देते हैं। क्या ये संभव नहीं है? देश में जान से ज्यादा कीमती हो गए बिल। चलिए आरपी सिंह इसका उत्तर दीजिए, आरपी सिंह इसका उत्तर दीजिए धर्मेंद्र मलिक को। इनकी जानकारी में है और ये जानकर अपने आप को उस जानकारी से अनभिज्ञ करना चाहते हैं। 2 साल के लिए 1.5 साल के लिए बिल अभी रुके हुए हैं, वैसे ही रुके हुए हैं, ये नहीं कि कोई 1.5 साल तक एक भी स्टेट ने जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, आज भी बिल के अगेंस्ट में काम हो रहा है। एक पैन कार्ड पे मध्य प्रदेश में खरीद हो रही, उत्तर प्रदेश में खरीद हो रही, आपके हरियाणा में साइलों में खरीद हो रही है। आप ये मत कहिए कि बिल रोके हुए हैं और एक भी एक करके धर्मेंद्र मलिक जी, आपने अपना पक्ष रखा, आरपी सिंह उत्तर दीजिए धर्मेंद्र मलिक को। अरे कुछ ठीक नहीं है मामला, थोड़ा सहनशील बनो, सच सुनने की क्षमता रखो। सच ये है, मैं अभी फिर कह रहा हूँ 1.5 साल तक तो वैसे भी आपको यही बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी किसी राज्य ने नोटिफिकेशन जारी किया हो तो आप दिखा दो, कोई बिल नहीं है। ओके, वन बाय वन धर्मेंद्र मलिक जी, आपने अपना पक्ष रखा, अब आरपी सिंह को सुनिए। सच सुनने की आदत नहीं है इनको जी। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, कृपा कर एक कैप्टन अमरिंदर सिंह जो आपके खास है, राहुल गांधी जिनकी गाड़ी में बैठकर घूमते हो, उससे पूछो 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा कब माफ करेगा। एक बार नहीं बात निकलेगी। वो वादा किया था, गुटखा साहब की कसम खाई थी कैप्टन साहब ने, मैं 90,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दूंगा। ये नहीं बोलेंगे क्योंकि ये प्रेरित है। अरे पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब के कर्ज की बात नहीं कर रहे हैं, आंदोलन बिलों को लेकर है, बिलों पे बात करिए। आपने जाकर चुनाव में कांग्रेस के लिए काम किया, आपने किया ना वहां पे बंगाल में जाकर कांग्रेस के साथ। बड़े भाई, हमने तो आपके लिए भी काम किया। हमने तो 2014 में आपकी सरकार बनवाई, 19 में आपका सहयोग किया। आप मदद कर रहे हो, आप किस प्रकार ऑक्सीजन दिल्ली में ना आने के लिए आप मदद कर रहे हो। आपकी पूरी चेष्टा है कि दिल्ली में, देश में वंडर मचे, दिल्ली में हाहाकार हो, हरियाणा में हाहाकार हो, पंजाब में हाहाकार हो। आपकी पूरी चेष्टा है। वो आपको आपकी नाकामी है, वो हमारे से थोड़ा कोई मतलब है उसका। मतलब किसान यूनियन अपनी हठधर्मी पर अड़े रहेंगे, चाहे उसमें किसी की जान जाए। बट आरपी सिंह, why is the government not doing about it? Why is the government not reaching out to the farmers yet again and explaining to them that this new mutant of coronavirus is extremely dangerous? This is the time. Call off your agitation, go home, come back when the situation is better. Sir, Haryana Chief Minister said today, it's on record, but they have to still agitate because they are not agitating for farmers' issues, sir. They are agitating for political issues. Mark my word, they will try to continue agitation till next Punjab and UP election. And mark my word, all these Kisan leaders will contest Punjab election and these guys will contest UP elections. For them, it's not farmer issue. And I'm giving them a challenge. Let them prove a single farmer land is going through this bill. Because of this bill, किसी किसान की जमीन जाएगी तो मैं मान जाऊंगा। शर्त लगा लें उससे ये। सर में क्या इनको डुगडुगी बजानी है, झूठा बाउंडर खड़ा रखना है? क्योंकि इनको नहीं तो अगर ये झूठा बवंडर आपके मुताबिक खड़ा कर रहे तो आप सच क्यों नहीं बता पा रहे? आप सच बताइए। इनके साथ अगर 15,000 कल किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? किसान बिल के अनुसार से कौन सी किसान की जमीन जा रही है? किसान बिल के हिसाब से कौन से किसान की जमीन जा रही है? चर्चा करते हुए अब तो ये बहुत पुरानी बातें होगी। अब तो बात ये है कि आप बिल वापस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, बस इतनी सी बात है। Mr. Vikram Singh, that's the problem at this stage. Mr. Vikram Singh, that's the problem. What are the options? What are the options, Mr. Vikram Singh, either for the central government or for the state government? Even if the government says that do not congregate, what if the farmer unions refuse to go back? And in your opinion, sir, in your opinion, are the farmer unions, by agitating when corona is at its peak, or God forbid, maybe the peak is still not here, are they cutting their nose to spite their face? Precisely, Mr. Gaurav Sawant. Let me tell you, the topmost priority and which is non-negotiable is the health of those suffering in the ICUs and the hospitals and those who are infected and require immediate medical intervention. Their health, it is a primary and a fundamental right guaranteed by the Constitution. Nothing, no grievance, no demand can have a precedence over that.
and the government's duty, the topmost duty, Mr. R.P. Singh Sahab, is to ensure the right of passage to oxygen, medicines, and the health and the topmost fighting efficiency of our corona warriors. That would include our doctors and the paramedical staff. And nobody on earth has a right to obstruct them or their passage. And if they do, it is the painful duty of the government to ensure safe passage, whatever be the price. But you know, that's the other part of the problem, Mr. Vikram Singh. And since you're a police officer, doctors are risking their lives, healthcare workers are risking their lives, then policemen will be risking their lives. And so many policemen have lost their lives in the line of duty. So, ये जो हठधर्मी इस समय चल रही है कि चाहे कोरोना हो ना हो, हम तो 15,000 लोग दिल्ली बॉर्डर को ब्लॉकेट करेंगे और वहां एजिटेट करेंगे, इससे पुलिस वालों की जान को भी खतरा हो जाएगा और दिल्ली वालों की जान को खतरा होगा, हरियाणा वालों की जान को खतरा होगा। मिस्टर विक्रम सिंह, गौरव जी, दुर्भाग्य इसी बात का है कि जो पुलिस फोर्स है 50% वो किसानों के बेटे हैं, किसानों की बेटियां हैं। कम से कम इतनी कृपा तो अपने ऊपर कर लीजिए। अरे दूसरों को मांगे तो आती हैं, मांगे जाती हैं, ये आप भी जानते हैं। आपकी मांगे जो हैं उसको सर्वोच्च प्राथमिकता सर्वत्र मिलती है। अरे कम से कम अपने बेटे बेटियों के ऊपर तो इतनी धर्मेंद्र मलिक जी कृपा कर लीजिए। राकेश जी से मेरा राम राम कह करके ये संदेशा दीजिएगा। एक बुजुर्ग होने के नाते मैं उनको मशवरा दूंगा, अपने बेटे बेटियों के ऊपर ये अन्याय ना होने दें, क्योंकि पुलिस तो इतनी भारी कीमत देने के बाद, इतनी सुप्रीम सैक्रिफाइस देने के बाद अगर पुनः उनको बलि देने की बात अगर हम करेंगे, वो किसी के लिए भी स्वीकार्य नहीं होगा। और ये बड़ी भारी कीमत देश समाज और किसान समाज भी देगा। इसका कोई औचित्य, आपने सही कहा गौरव, अपनी नाक काट के दूसरे को हम ठेंगा दिखाएं, ये कहीं का औचित्य नहीं है। धर्मेंद्र मलिक जी, हमारा तो जी, ये कहाँ की बात कर रहे हैं? ये तो बक्कल उखाड़ रहे थे पुलिस वालों के, ये तो पुलिस वालों के बक्कल उखाड़ रहे थे, गोलियां चलवाने की बात कर रहे थे। टिकैत साहब ने कहा था ना बक्कल उखाड़ देंगे। इन्होंने तो पुलिस वालों को 20 फुट की खाई में घेरा है। इन्होंने 20 फुट की खाई में घेरा। चलिए, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। इस समय जो समस्या है, इस समय गंभीर समस्या है। अरे धर्मेंद्र मलिक जी, कोरोना का प्रकोप है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मतलब अंत्येष्टि करने की जगह नहीं बच रही है शमशान घाटों में, दफनाने की जगह नहीं बच रही है कब्रगाहों में। इतनी गंभीर समस्या है, तो क्या ऐसी समस्या में क्या समस्या को और बढ़ाना चाहिए, या जब तक डॉक्टर कह रहे हैं, किसी और की सुने ना सुने, डॉक्टरों की तो सुनिए। अगले 15 दिन, 20 दिन, महीना, जब तक डॉक्टर कहे घर बैठिए, अगर जीवन बचेगा तो एजिटेशन भी चलेगा। नहीं गौरव जी, आपकी बात सही है और सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए। तो वही तो, अरे आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बात की तो किसानों से, वही तो कह रहे हैं। हरियाणा के जो अनिल विज आए थे, उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि आप एक रास्ता दे दो। तो हमने कहा कि रास्ता खाली है, आपको जितना रास्ता की आवश्यकता है हम उतना रास्ता बनवाने के लिए तैयार हैं। आप दिल्ली पुलिस से बैरिकेड हटवाइए, हमारा कोई अवरोध नहीं होगा। जितनी उन्होंने बात की उतना हमने सहयोग किया। अब भारत सरकार को चाहिए कि वो 2-3 किसान नेताओं से बुला के बात करें और इस मामले में इंटरवीन करें, और फिर ताकि सब, जब तक कोरोना का प्रकोप है, सब घर जाएं, अपने घर में सुरक्षित रहें, जिंदगी रही। डॉक्टर हर्ष महाजन, आप तो डॉक्टर हैं, मतलब भगवान के बाद डॉक्टर का दर्जा है। अगर डॉक्टर कहे कि जिंदगी रहेगी तो एजिटेशन भी कर लेंगे, जिंदगी नहीं रही, जल गए, दफन हो गए, तो क्या एजिटेशन रहेगा? डॉक्टर महाजन, व्हाट आर यू लुकिंग एट? अनदर कोरोना हॉटस्पॉट और परहैप्स एन एडवाइस टू फार्मर्स, अभी घर जाओ, अभी सब शांत रहते हैं, कोरोना खत्म होगा फिर आगे देखेंगे। हम तो एज डॉक्टर्स यही हाथ जोड़ के कह सकते हैं कि हमें सहयोग दीजिए। और आपका जो एजिटेशन है उसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आप जानते भी नहीं कि कितने लोग जुड़े हुए हैं उसमें। मैं भी पंजाब से ही आता हूं, हालांकि दिल्ली का रहने वाला हूं। बहुत किसानों के साथ सहानुभूति है। ये अगर होगा और इससे अगर क्षति हुई तो आप जो ये इतनी सपोर्ट है, मुझे लगता है उसमें फर्क पड़ेगा। आप कुछ लूज भी कर सकते हैं, तो थोड़ी देर बात कर लीजिए। अभी चरम सीमा पे है ये कोरोना का प्रकोप, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। So Dr. and Mr. R.P. Singh, will the government reach out to the farmers, explain the situation to them? Dharmendra Malik is indicating maybe the center needs to reach out to them. Reach out to them, explain to them, let everybody go home till the time the situation is better. Gaurav, Dharmendra Malik just now said that the government should talk to 2-3 leaders. Okay, Malik sir, designate 2-3 leaders who will talk on behalf of farmers. I'll negotiate for you. I'll mediate for you. But issue is there are 32 of them. When they don't sit together, they don't put their head together.
when few of them have already walked out. Few of them already walked out of 26 January. The issue is, sir, there is no आपकी issue. सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा किसानों के लिए कि कोरोना काल है, आप इसमें बात सुनिए, मानिए, इसको वापस कीजिए, कोई निवेदन आपकी तरफ से? आप लोग समझ जाइए, संभल जाइए, वरना देश नहीं संभल पाएगा। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.